नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2015 से 2020 के बीच भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो गया है। बंगलुरु में एरो इंडिया शो के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार 2022 तक रक्षा आयात को कम से कम $2 बिलियन तक कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 2025 तक $25 बिलियन के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना है तो इसमें एरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि एरो इंडिया 2021 के दौरान हमने 128 समझौता ज्ञापन, 19 TOT, 4 हैंडिंग ओवर, 18 उत्पाद लॉन्च और 32 प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। यानी कि कुल मिलाकर ये 201 का आंकड़ा भव्य है। एरो इंडिया 21 में भाग लेने वाले 45 MSME को 203 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। Aero India started in 1996 and today in 2021 we are in the 13th edition. This event has played a critically important role over the years in addressing the issues of Indian aerospace and defense industry. It has played a very constructive role in India's emergence as one of the most rapidly growing economies in the field of aerospace and defense sector. Friends, Aero India has offered a unique platform not only to the Indian public and private sector industry, but to the global original equipment manufacturers to forge partnerships, showcase their products and technology to the potential customers and investors. It has also provided market insights and has become a platform to announce new developments to further the business interests. The year 2020 was a difficult year for the entire world. The outbreak of COVID-19 pandemic brought with itself a great amount of difficulty and setback to the economy. India was no exception. It is really challenging for India to make quick strides towards attaining its economic potential. To give flip to its economic activities, Aero India 2021 will prove to be a milestone. Friends, despite COVID-19 constraints across the world, Aero India 21 has been immensely successful. This is evident as more than 16,000 people were attended Aero India physically and more than 4.5 lakh virtually. This platform hosted for 540 companies, including 84 foreign companies from 55 nations. This is nothing part of a spectacles, and I must add that 121 MOUs, 19 transfer of technology, 4 handing over, 18 product launch, and 32 major announcements is the vindication that Aero India 2021 has been a grand success. And I see on this case is rupee 203 crore worth of order backed by 45 MSMEs during the Aero India 21. This has been possible only because of the event was organized both physically and virtually. In this event, a huge India pavilion showed India's strong presence in the world of defense and aerospace. Our indigenous and collaborative technology demonstrated in it is important for the progress of aviation sector in both strategic and social spheres, not only in the present but also in the future. This bodes well not only for the security and development of our nation but also for the entire region. Friends, the Indian Ocean region has been of strategic importance for India. Security and growth for all in the region was envisaged by our Honorable Prime Minister in order to maintain peace,
security in the region and fulfill our combined business objectives. To achieve this vision of India, Iowa Defense Ministers Conclave was also organized at the event. The broad theme of our conclave was enhanced peace, security and cooperation in the Indian Ocean, in which ministers and delegates from around 28 countries ensured their active participation. In the conclave, various aspects related to synergizing the resources and efforts in the Indian Ocean region were deliberated. I strongly believe that there will be higher level of cooperation in the days to come among Indian Ocean region countries in all aspects of peace and security. Brothers and sisters, towards our objective of collaborative security for the region and beyond, a conclave of chiefs of air staff was also organized in this Aero India show. राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी हो गई और सोमवार को चर्चा का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी सांसदों ने प्रमुखता से खेती और किसानों के मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का पक्ष साफ किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने सदन में कृषि कानूनों पर विपक्षी दलों का तर्क सुना। सभी ने कानूनों की आलोचना की, लेकिन कोई भी सदस्य या किसान संगठन कृषि कानूनों के प्रावधानों की कमियां नहीं बता पाए। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा और एपीएमसी के बाहर ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के टैक्स को समाप्त करता है। कृषि मंत्री ने यह साफ किया कि उन्होंने किसान संगठनों के साथ 12 बार वार्ता की और बार बार यही कहा कि वे क्या बदलाव चाहते हैं, इस बारे में बताएं। कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन के प्रस्ताव का ये मतलब नहीं कि कानून में कुछ गलत है। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी ख़त्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग परिवहन विभाग में तैनात एक सिपाही पर हमला करते दिख रहे हैं। यही नहीं, सिपाही को चारों तरफ से घेर कर बुरी तरह पीटा जा रहा है। पूरे मामले पर वीडियो वायरल होने के बाद एआरटीओ ने डीएम एसपी से शिकायत भी की है। दरअसल ये पूरा मामला चंदौली परिवहन विभाग का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक टीम मुगल सराय वाराणसी बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक खड़े ट्रक का दरवाजा तोड़कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसका
लोगों ने विरोध किया। इस हड़बड़ी में बालू लदा ट्रक पलट गया। इसके बाद सिपाही को बालू माफियाओं ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला करने लगे। घटना के दौरान सिपाही को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर यू टर्न लेते हुए आरटीओ विभाग के पीटीओ राजेश कुशवाहा, जो वहां मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बालू लदा ट्रक ओवरलोड था जिसकी चेकिंग की जा रही थी और आरटीओ ने उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया था। इस दौरान गाड़ी मुड़ते समय ट्रक फिसल गया और सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद लोगों ने आरटीओ की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। गौरतलब है कि चंदौली जिला ओवरलोडिंग को लेकर पूर्व में भी चर्चा में रहा है। ओवरलोडिंग के इस काले कारोबार में पूर्व एआरटीओ आरएस यादव के खिलाफ गंभीर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। बावजूद इसके चंदौली का एआरटीओ महकमा अभी भी उसी लकीर पर चलता दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीटीओ ने ताला तोड़कर ये ट्रक अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था, इसलिए ये हादसा हो गया। कल हम लोग दोपहर में प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें 2 ओवरलोड गाड़ी मुगल सराय के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी में हम लोग बंद किए थे। अब बंद करने के पश्चात चंदौली की तरफ आ रहे थे तो उसी कटरिया अंडरपास के पास एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो देखने में ओवरलोड प्रतीत हो रही थी, पूरा बालू फुल लदा हुआ था। तो तुरंत हम लोग उसको, हमारा सिपाही संकेत दिया रुकने के लिए, तो वो गाड़ी थोड़ी देर आगे जा करके 10-20 मीटर आगे जाके रुका और कहा कि सर यहाँ से मुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बाई साइड लेन से जा रहा था, सर्विस लेन से। तो कहा कि सर आगे चौड़ा जगह में मुड़ के आता हूँ। तो वो ड्राइवर उसको स्वयं अपने चला रहा था। चलाने के दौरान वो गाड़ी मुड़ा कर जब लाया तो चलती हुई गाड़ी में किनारे करके रोकने का प्रयास कर रहा था और गाड़ी को चलती दशा में ही धीरे धीरे वो कूद करके भाग गया। भागने के बाद तुरंत वो गाड़ी आगे जाने पर पलट गई, जिससे कि दुर्घटना वो हो गई। और उसमें मेरा सिपाही उस साइड में उसको मुड़वा रहा था, जिससे कि वो चोटिल होते होते बच गया और किनारे भाग करके किसी तरह। उसी दौरान पीछे से जो अराजक तत्व थे, लोग जो नहीं चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, वहाँ हम लोग सघन चेकिंग लगातार कर रहे हैं। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए चक्का जाम का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन इस चक्का जाम में शांति व्यवस्था बनाए रखना किसान नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। इस चक्का जाम में आशंका जताई जा रही है कि किसानों को उकसाकर बवाल कराया जा सकता है, इसलिए किसान नेताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल के बाद से किसान नेता हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और चक्का जाम में शांति और अहिंसा पर जोर है। सबसे ज़्यादा युवा किसानों को संदेश दिया जा रहा है कि आंदोलन को तोड़ने वाले उकसाने के लिए कुछ भी करें, लेकिन किसानों को शांत रहकर ही सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों, राहगीरों से अभद्रता नहीं करने की अपील की गई है। चक्का जाम के दौरान शरारती तत्वों पर नज़र रखने के लिए वॉलंटियर लगाए गए हैं। कृषि कानून रद्द कराने की मांग कर रहे किसानों की शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने में मिसाल पेश की जाती थी कि इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद किस तरह से किसान व्यवस्था बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद हर किसी की चिंता बढ़ी हुई है। किसान नेताओं को खुद भी डर था कि दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से माहौल गर्म था, उसको देखते हुए संसद मार्च के दौरान भी बवाल हो सकता है। ऐसे में आंदोलन को अभी तक केवल धरने तक ही सीमित रखा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि चक्का जाम के दौरान कोई निकलने का प्रयास करता है तो उसकी परेशानी को देखकर बाहर निकलने दिया जाए, किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हों, लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है, तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, जैसे रोड नंबर 56 है या NH24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी राइट गियर के साथ इंतजामात किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी किस्म का इनक्रेस दिल्ली में ना हो सके। अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। और इस वजह से हमें
उम्मीद है कि ये पीसफुल रहेगा। तमाम जगहों पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे एक एरियल व्यू बहुत ही बड़े इलाके का मिल जाता है। साथ में सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी सेंसिटिव जगहों पे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी वगैरह का भी इंतजामात सब कुछ है। इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर जब होती है तो उसमें जिस तरह की व्यवस्था पुलिस करती है वो तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री हाईकोर्ट की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, या ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे संविधान की इस भावना को, इन मूल्यों को हमारी न्यायपालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती रहती है,
लेकिन अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं देते। इसकी एक बानगी यूपी के जनपद संभल में देखने को मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र हयात की। आपको बता दें कि पत्रकार मुबारक अली ने पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में हो रही विद्युत आपूर्ति को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी। खबर को लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। लापरवाह अधिकारियों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए पहले तो पत्रकार को फ़ोन करके धमकाना शुरू किया, लेकिन जब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो विद्युत उपकेंद्र पवासा के जेई जयवीर सिंह उसके गांव पहुंचे। उच्चाधिकारियों से डांट फटकार खाए जेई ने पत्रकार के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। घटना को देखकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। भीड़ को देखकर विद्युत विभाग के कर्मचारी एक एक कर मौके से खिसक गए। पीड़ित पत्रकार हयात नगर थाने पहुंचा और अपनी शिकायत थानेदार को दी, लेकिन बेलगाम थानेदार ने उसकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। इसके बाद उसने उपजिलाधिकारी दीपेंद्र यादव से शिकायत की। उपजिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखना यह होगा कि दबंग जेई के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपको आई कार्ड मांगने का अधिकार है हमसे, तो आप उनसे बात करिए, सूचना विभाग अधिकारी से बात करिए ना, हमारे सूचना विभाग अधिकारी से बात करिए ना। आप जो है सूचना विभाग अधिकारी से बात करिए, जितेंद्र का नंबर दे रहे हैं, डीएम साहब से बात करिए, कप्तान साहब से बात करिए। अपना आई कार्ड दिखाओ। हम आई कार्ड पहली बात तो हम पे आई कार्ड है भी और हम पे अधिकार भी नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक प्रकरण ये संज्ञान में भी पत्रकार बंधुओं द्वारा लाया गया है कि पवासा क्षेत्र में विद्युत विभाग के जेई हैं जयवीर सिंह जी, और उनके विरुद्ध जो है कोई अंधेरा रहने का, बिजली न आने की एक खबर जो है किसी अखबार में प्रकाशित की गई थी। और पत्रकार बंधुओं का कहना है कि उस खबर की प्रतिक्रिया में जेई साहब जो संबंधित पत्रकार महोदय थे उनके घर पर गए और उनके साथ, उनके परिवार के साथ बदतमीजी किया है। इस पूरे प्रकरण पर एक्सीएन चंदौसी से बात की गई है, जिनके अंतर्गत ये खंड पवासा आता है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रकरण की हम जांच कराते हैं, पता करते हैं और प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जा रहा है पत्रकार महोदय का, और उसकी जांच एक्सीएन साहब से कराई जाएगी। तदोपरांत जेई का पक्ष लेते हुए जैसा भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।